morning, students. Today I am going to teach you lesson number 16, Nina and the Baby Sparrows. Nina and the Baby Sparrows. Children, this story is about Nina and the baby sparrows. Let's start the lesson. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. नीना's aunt was getting married. उसकी आंट की शादी हो रही थी, बुआ की. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. नीना को छोड़ के घर में सभी बहुत खुश थे. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. नीना की मदर उसको मार्केट ले गई थी शॉपिंग के लिए. कभी भी घर में कुछ फंक्शन हो तो हम पहले शॉपिंग करते हैं, अपने कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े, है ना. और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है जिसे हम खरीदते हैं. तो नीना की मदर भी उसे मार्केट ले गई उसके लिए नए ड्रेस खरीदने के लिए. What color would you like? Mother asked. नीना की मदर ने नीना से पूछा, What color would you like? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? I don't want a new dress, mother, said Nina. नीना ने कहा कि मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलती है, सलवार कमीज़ दें. फिर सलवार कमीज़ ले लो बोलती है. ओके. नीना shook her head. जब उसकी मम्मी ने कहा कि सलवार कमीज़ खरीदूं, नीना shook her head. नीना ने अपना सिर हिलाया. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. नीना की मदर ने पूछा, What about those lovely white shoes you saw last week? तुमने जो लास्ट वीक शूज़ देखे थे वाइट कलर के, उनका क्या करना है? तो नीना ने रिप्लाई किया, I don't want those. मुझे नहीं चाहिए. Thank you, mother. Okay. Children, यहाँ ये वर्ड आया है, देखिए, shook. Shook is a past tense of shake. Shake का मतलब होता है हिलाना. shook, उसने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया. ओके. तो shake का मीनिंग होता है क्विक मोमेंट. Look here, children. Shake means quick movement. Joy means a feeling of great happiness. Upset means to make somebody worry or feel unhappy. Okay. Nina's mother was upset. Upset means to make somebody worry or feel unhappy. Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? नीना की मदर थोड़ी परेशान थी, बट उसने कुछ कहा नहीं. They went back home and had lunch. वे वापस घर गए और उन्होंने अपना लंच लिया.
लंच दोपहर के खाने को कहा जाता है। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद मदर नीना के पास आई और उससे पूछा, व्हाट इज इट चाइल्ड? व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? क्या हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम है, तुम हर चीज को नो क्यों बोल रहे हो? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। बट वाई? नीना ने आंसर दिया कि मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। मैं शादी में नहीं जाना चाहती। तो नीना की मदर ने पूछा, बट वाई? लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Instead means in place of somebody or something. तो नीना ने जवाब देने के बजाय क्या किया? कुछ नहीं कहा उसने। शी सेड नथिंग, और उसके आंसू टपकने लगे, वो रोने लगी। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। उसकी मदर ने उसे प्यार से गले लगाया। डोंट क्राई माई पेट, उसे समझाया कि डोंट क्राई। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, तुम्हें क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है? मदर ने नीना को प्यार से समझाते हुए, प्यार से सहलाते हुए पूछा। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheeks। इतना सुनने पर नीना और रोने लगी। नीना की आंखों से आंसू निकलने लगे। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheeks। मदर, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. नीना ने अपनी मम्मी को बताया, there's a sparrow's nest, स्पैरो का, पक्षियों का घोंसला है। कहाँ था घोंसला? ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, नीना के रूम में, उसकी बुक शेल्फ में, जहाँ पर वो बुक रखती थी वहाँ। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उसमें दो छोटे छोटे बेबी स्पैरोज थे। आई सी सेड मदर, उसकी मदर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम परेशान हो। They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry chip chip, asking for food. नीना ने अपनी मम्मी को बताया कि they are just beginning to get their feathers, अभी उसके पंख आ रहे हैं, मतलब वो बेबी बहुत छोटे हैं, तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप, वो चिप चिप की आवाज़ करते रहते हैं खाने के लिए। आई सी सेड मदर, उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो ये बात है। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम जाते हैं तो घर में ताला लगा कर जाना पड़ेगा, लॉक करके जाना पड़ेगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड देयर बेबीज, अगर हम घर लॉक करके जाएंगे तो पापा एंड मामा स्पैरो अपने बेबी को कैसे फीड करेंगे? फीड मतलब खाना खिलाना, कैसे खाना खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग। नीना की मदर ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, ओ नीना, is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We'll leave the window open. नीना की मदर ने कहा, अच्छा तो इसीलिए आप शादी में नहीं जाना चाहते थे? बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। विल
leave the window open. हम विंडो को क्लोज नहीं करेंगे, वो ओपन ही रहेगा. ओके. Oh, can we, mother? Can we? Really? नीना ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? Can we? Yes, yes. We'll remove all your things from the room and lock the door on the outside. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely too. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? नीना की मदर ने कहा, यस यस, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. हम तुम्हारे रूम से सारी चीज़ें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे और कमरे को बाहर से, आउटसाइड से, बाहर से लॉक कर देंगे और विंडो ओपन रहेगा. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. दरवाज़ा लॉक रहेगा तो वो सेफ रहेगा, थीफ का डर नहीं रहेगा. ओके. एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली. जो स्पैरोज है, पापा स्पैरोज एंड मामा स्पैरो, वो दोनों फ्रीली विंडो से अंदर आ जाएंगे और अपने बेबी को फीड करके फिर चले जाएंगे. जब तुम शादी में एंजॉय करोगी उस समय जो स्पैरोज है, बेबी स्पैरोज है, वो बड़े हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे, है ना. Isn't it good idea? उसकी मम्मी ने पूछा, क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? तो नीना कहती है, इट वॉज अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है. और जब नीना शादी से जब वापस आती है, वेडिंग से जब वापस आती है, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. दो छोटे छोटे स्पैरोज घर के चारों तरफ इधर से उधर उड़ रहे थे. एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? Thrilled means extremely happy about something. Okay. नीना बहुत खुश थी बेबी स्पैरोज को उड़ते हुए देखकर. Look here, children. Here are some difficult words and their meanings. Let's understand. Instead. Instead means in place of somebody or something. Instead means in place of somebody or something. Thrilled. Thrilled means extremely happy about something. Extremely happy about something. Feel. Feel means feed. Feed means to give food to a person or an animal. Feed. To give food to a person or an animal. Bother. Bother means to disturb, worry somebody. Okay. Okay, students, read the lesson by heart. Okay, thank you.